Good morning, students. If you are able to hear me and able to see the screen, please send yes in the chat box. Good morning, Arun. We will start the lecture now. Okay, so we don't have that time to wait for others today. Let's start the lecture. Yesterday we have completed the integral part of this chapter, differential equation, along with the complete solution of given differential equation, right? The y part of this. Earlier we have studied complementary function, that is yc part. Now we yesterday studied particular integral also, how to find and everything. I have updated the PDFs in the classroom, uploaded video on YouTube. I gave the name as part 1, part 2, part 3 like this, chapter name and then parts, name of the part 1, 2, 3, 4 like that. And we are at the very last part of this chapter and very easy part. After this chapter we are going to start, instead of Laplace transform, we will start as we are in the mood of doing integration and all. So we will complete multiple integral, application of multiple integral, and then the last part DUIs, that is differential under integration sine alpha beta gamma functions. Okay, and then at the end we will do Laplace transform. We have sufficient time to finish our syllabus and time with proper understanding. My first and last priority is to understand the concept and sums properly, so that whenever you see the similar kind of question, you supposed to solve that without any hesitation, without any issue. That is my ultimate target. Okay, so we will start the last part, which is called as a homogeneous linear differential equation. So you know that what is the meaning of homogeneous. Tell me the meaning of homogeneous please. हमने दो टाइप के होमोजेनियस इक्वेशन पढ़े. एक हमने जब मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, राइट, एंड एक मैट्रिसेस या फिर जो इक्वेशंस है वो, और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप के थे. एक जिसके इक्वल टू में ज़ीरो होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज होमोजेनियस, एंड दूसरा जिनके पावर सेम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं, राइट. तो यहाँ पे अभी हम जो होमोजेनियस इक्वेशन देखने जा रहे हैं, दैट इज़ होमोजेनियस differential equation, linear homogeneous differential equation, right. So I will give you the generalized form of this. The generalized form of this is x raised to n dny upon dx raised to n plus b1 x raised to n minus 1 d raised to n minus 1 y upon dx raised to n minus 1 plus p2 x raised to n minus 2 dn minus 2y upon dx raised to n minus 2 plus dot dot dot. और जब आप लास्ट तक पहुँचोगे, इट विल बी पी एन माइनस वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लास्ट में पी एन ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स. इसके पहले हमने जो इक्वेशन देखा था टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर, और इसके पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले कंसेप्ट पढ़े थे, वहाँ पे एक्स वाला पार्ट नहीं था, सिर्फ ये पी आई ए लिखा था हमने, राइट, और इसको हम डी लिखते थे. नाउ यहाँ पे क्या हुआ, एक्स आने के कारण ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ नहीं है. इट इज़, ये जो अबव इक्वेशन है, इट इज़ अ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ एक्स वेरिएबल कोएफिशिएंट. इसके जो कोएफिशिएंट्स है डी वाई बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट वो एक्स है, और एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल कोएफिशिएंट्स. हमने जो पढ़े थे वो थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब एक्स नहीं था, सिर्फ पी या ए लिखा था हमने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा तो, या फिर यू कैन चेक पीडीएफ ऑल्सो. दिस इज एक्स वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ ऑर्डर एन. ऑर्डर क्या है इसका, एन. हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, एन है. डिग्री इसका 1 रहेगा, ठीक है. इसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉचीज इक्वेशन. क्या कहते हैं इसको, कॉचीज इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो वर्कआउट किया गया था वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम कॉचीज था, ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉचीज इक्वेशन.
इसको हम कॉची इक्वेशन कहते हैं। अभी इस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को हमने सॉल्व कैसे करना है इसके पहले देखा है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट थे। अभी इसको भी सॉल्व करना है तो हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मेथड यूज़ करेंगे, बट वी विल कन्वर्ट दिस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। कैसे पता है? z इज इक्वल्स टू log x सब्स्टिट्यूट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका सॉल्यूशन कॉची नहीं दिया था, इसके लिए इसका नाम कॉचीज इक्वेशन रखा है। तो z इक्वल्स टू log x सब्स्टिट्यूट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मेथड है, याद रखना। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके पहले वाले क्वेश्चंस की तरह, एंड देन वी विल सॉल्व बाय द अर्लियर मेथड्स। तो सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट क्या है यहाँ पे, ये इक्वेशन कैसे रहेगा, ये फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट ये करना है, सॉल्व पहले की तरह करना है। कैसे, एग्जांपल के साथ बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और हमें इसके अंदर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, थोड़ा ध्यान दो, ठीक। व्हेन यू राइट z इज इक्वल्स टू log x, इधर log अगर उधर जाएगा तो बन जाएगा e रेज़ टू z इक्वल्स टू x, ये सबको पता है, राइट। तो आप ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर सेम, ठीक। नाउ आई विल स्टार्ट विथ दिस अगेन। नाउ z is equals to log x, differentiate both side with respect to x। तो z वाला हो जाएगा dz अपॉन dx, log x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन x, ये आपको पता है, ठीक है। मेरे पास dy बाई डी एक्स है और एक dz बाई डी एक्स है। तो अगर मैं इसको dz बाई डी एक्स लिखूँगा तो dz को कैंसिल करने के लिए नीचे लिखना पड़ेगा, ऊपर dy। ये थेरम है, चेन रूल का थेरम है। dz कैंसिल होगा तो dy बाई डी एक्स ही बचेगा, राइट। मेरे पास dz बाई डी एक्स का वैल्यू भी है 1 अपॉन एक्स डॉट dy बाई dz, ये वाला पार्ट एज इट इज़, इसकी जगह डाल दिया 1 अपॉन एक्स, ठीक। मैं इसको अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको मतलब डिफ्रेंशिएट के पहले इसका फाइनल आंसर लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स डॉट dy बाई dz, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू u इंटू वी, यू एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड, राइट। क्या हो जाएगा ये, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड प्लस v एज इट इज़, दैट इज़ dy बाई डी जेड एज इट इज़, एंड 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर। यहाँ पे भी मैं अभी चेंज कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू इन दिस केस, व्हाट कैन आई डू इन दिस केस, बोलो। देखो यहाँ पे मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स एज इट इज़, ये हो जाएगा ऊपर वाला डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स नहीं, यहाँ पे मैं अभी लिखूँगा डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे डी जेड एक ऐड किया तो ऊपर लिखूँगा तो कट होगा, ये डी एक्स जो नीचे था इधर एडजस्ट कर लिया। तो आप देखो डी इंटू डी स्क्वायर वाई, नीचे डी एक्स था, डी जेड स्क्वायर एंड डी जेड, एक डी जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यही मिलने वाला है। और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई एंड डी जेड, यह आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड इट गोज़ ऑन। ये आगे जाके हमें इट विल रादर गो ऑन वाला सिचुएशन है, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप एट एनी पॉइंट, ठीक। इधर डी जेड बाई डी एक्स की जगह पे यू कैन अगेन सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर, इसकी जगह पे फिर से 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी जेड, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसको कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड, यह आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। अगर आप इसको ऐसी ही मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको एक डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब भी मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे डी क्यूब वाई या डी रेस टू 4 वाई तक वाले ही देखे। तो देखो क्या मिलेगा इसी की तरह, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, वॉट यू विल गेट इज़, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, वहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था,
यहाँ पे 1/x³ इन ब्रैकेट d³ बाय dz³ माइनस 3d² बाय dx² प्लस 2dy बाय dz। ठीक, ये मिलेगा। तो अभी इसमें क्या करेंगे हम, जितने ऊपर से हमने निकाले हैं, पुट d/dz की जगह पे हम d लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ सॉल्व किया था, अगर आपको याद है तो देखो, dy/dx क्या लिखा था हमने, 1/x इंटू dy/dz ये लिखा था। dy/dx को देखो, dy/dx 1/x dy/dz लिखा था। ठीक है, ये पूरा मेथड्स है। अभी इस x को इधर भेजो तो ये हो जाएगा x इंटू dy/dx इक्वल्स टू dy/dz, राइट। जिधर d/dz क्या है, d है, तो इसकी जगह पे मैं d और y को एज इट इज लिख सकता हूँ, बराबर। दूसरा, ये फर्स्ट हुआ। अभी सेकंड, ये वाला d²y/dx² क्या है, d²y/dx² है 1/x² इन ब्रैकेट d²y/dz² माइनस dy/dz, राइट। x² इधर जाएगा, d²y/dx² इक्वल्स टू d²/dz², d/dz d है तो ये क्या हो जाएगा, d² माइनस ये हो जाएगा dy, राइट। दोनों में से y कॉमन हो जाएगा तो इट विल बी d² माइनस dy कॉमन, राइट। फिर इसमें से d भी निकाल लो तो ये हो जाएगा x² d²y/dx² इक्वल्स टू d कॉमन इन ब्रैकेट d-1 इंटू y। ऐसे हम लिख सकते हैं। वैसे आप x³ से भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा थर्ड वाला पार्ट, d³ इज इक्वल्स टू 1/x³ इन ब्रैकेट d³y/dz³ माइनस 3d²y/dz² आएगा। ये dx लिखा है मैंने, सॉरी, सब dz में आएगा तो इट विल बी dz² प्लस 2dy/dz, राइट। तो x³ इधर जाएगा, x³ इंटू d³y/dx³, d³/dz³ को मैं d³ इंटू वाई माइनस 3d² इंटू वाई प्लस 2d इंटू वाई लिख सकता हूँ। इनमें से y कॉमन, d भी कॉमन, तो ये कैसे दिखेगा, x³ d³y/dx³, सब में से d को कॉमन निकाला, अंदर d² बचेगा माइनस 3d बचेगा प्लस 2 बचेगा और इधर y कॉमन आएगा, राइट। अभी d² माइनस 3d प्लस 2, तो मल्टीप्लिकेशन 2 आना चाहिए, एडिशन 3 आना चाहिए, तो -2 -1 फैक्टर्स माइनस माइनस प्लस 2 1 2 -2 -1 का एडिशन -3, राइट। तो इसका जो फैक्टर्स आएगा वो क्या आएगा पता है, d है ऑलरेडी, इसका फैक्टर्स आएगा d-1 d-2 इंटू वाई, गेटिंग। तो देखो, जब आपके पास सिर्फ dy/dx था तो वो होता है dy, d²y/dx² था तो d इंटू d-y, तो इसमें d-y ऐड हुआ। जब क्यूब था तो d-1 और उसके बाद ऐड हुआ d-2। अगर फोर्थ पावर रहेगा तो d-1 d-2 d-3 ऐड। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है बस, इसके आगे जो पढ़ा हो कुछ काम का नहीं है, ट्रस्ट में, इतना याद रखना है। इसका जब तक यूज़ नहीं होगा ना तो आपको ये थ्योरी भी समझ के कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं जब थ्योरी बताऊंगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसका यूज़ क्या है। सम वक्त सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे स्टार्ट द क्वेश्चन सिंपली। सो just a second, I'm in the college, I will close the door first, wait. First question, let me check the simple question we can do so that आपको कुछ issue ना आए। Which question is good to do? Simple one instead of difficult one. Yes, I have the question. First we will do simple, then little bit महंगा and then उससे महंगा, 3 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन ये वाला चैप्टर फुल स्टॉप। आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में। क्वेश्चन 1 सो है एक्चुअली मेरे लिए सस्ता है बट आपके लिए थोड़ा सा लेवल उसका बराबर है, ठीक। क्वेश्चन इज x² इंटू d² y/dx²
माइनस 3x dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एंड ये होमोजीनियस है, कैसा पता चलेगा? इसका पावर 2, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसके पास dy बाई डी एक्स नहीं तो सिर्फ y है। इसी से पता चलेगा कि होमोजीनियस है। देखो होमोजीनियस का जो स्टार्टिंग हमने पढ़ा था पावर n, राइट, पावर n माइनस वन, तो x का पावर एंड डेरिवेटिव का डिफ्रेंशिएशन का पावर सेम होना चाहिए, तो उसको हम होमोजीनियस समझें। ठीक, अर्लियर इक्वेशंस में ऐसा नहीं था, कभी एक्स स्क्वायर नहीं था, कभी था तो इसका पावर ज़्यादा था या कम था, ऐसे था। लेकिन अभी एक्स का पावर एंड इसका पावर सेम होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे टाइम पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे? होमोजीनियस पता चलेगा तो पुट z इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक, तो z इक्वल्स टू लॉग एक्स रहेगा, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता है, लॉग उधर जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा e रेज़ टू z, e बनेगा, z ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसमें मेरे पास एक टर्म है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं पता है? सिंस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो हमने निकाला है उसको सीधा यूज़ करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देने का नहीं। ये जो एक्सप्लेनेशन हमने लिखा है इधर, ये इधर देने का नहीं, इधर सीधा इसका रिजल्ट लिखेंगे। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? डी माइनस वन वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ डी माइनस वन इंटू वाई, राइट। एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, सिंस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का क्या होता है? डी इंटू वाई, हमने लिखा है डी इंटू वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। वेर डी कौन है? वेर डी इज डी बाई डी जेड, ये भी लिखना है। डी कौन है? डी बाई डी जेड। ठीक, बस इसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? इस पूरे की जगह पे आएगा देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, इतना सिंपल है। देखो आपको क्या याद रखना, मैंने बोला था जिसको टिक मार्क किया वही याद रखना है, पूरा आपको प्रोसीजर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल वही यूज़ कर रहे हैं हम। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे डी इंटू डी माइनस वन वाई माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स के डी इंटू वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ये सब में से y कॉमन आएगा, d इंटू डी हो जाएगा डी स्क्वायर, d इंटू माइनस वन हो जाएगा माइनस डी, यहाँ पे है माइनस 3d, यहाँ पे है प्लस 4, और सब में से y कॉमन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d हो जाएगा माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अरे ये तो अपना वही इक्वेशन आ गया जो हम पहले करते थे, उसमें ही कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है? नाउ ये पार्ट को डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 को क्या लिखेंगे? 0। ये क्या है पता है? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, डी माइनस 2 इंटू डी माइनस 2, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये डी माइनस 2 का स्क्वायर है। डी स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4d प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे सीधा पता चलेगा d माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर d का 2 वैल्यू आएगा 2 और d का भी वैल्यू 2। रूट्स कैसे है? रूट्स कैसे है? देयरफॉर रूट्स आर रियल है, रियल यस। और हम इक्वल नहीं कहते, क्या कहते हैं? रिपीटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीटेड, रियल एंड रिपीटेड, राइट। जब रियल एंड रिपीटेड रहते तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी क्या होता है? C1 प्लस C2, पहले का C1 दूसरे वाले का C2, और उसको क्या लगा देने का? x इंटू क्या हो जाएगा? ई रेस टू रूट क्या है? 2 इंटू एक्स, C1 प्लस C2 इंटू एक्स ई रेस टू एक्स, राइट। यहाँ तक हम पहुँच गए, बराबर। एक चीज़ हम भूल गए, 2x स्क्वायर है ना, x की जगह ई रेस टू जेड है, तो ई रेस टू जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 2z, ई रेस टू 2z, ई रेस टू 2z, ठीक है। तो इसका जो रूट आएगा ना वो x में नहीं आएगा, इट विल आल्सो कम इन z, क्योंकि हम z की बात कर रहे हैं, तो इट विल कम इन z, सॉरी इट विल कम इन z, ठीक है। तो ये z में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का बात खत्म। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल मेथड वही है, x की जगह पे z आएगा, फिर लास्ट में z को सब्स्टिट्यूट करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या लिखते हैं? 1/f ऑफ डी। एफ ऑफ डी क्या था? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। देखो एफ ऑफ डी ये है,
बराबर इनटू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था आपका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था 2e⁻²z, सॉरी x की जगह पे ये था ना, तो ये लिखेंगे 2 × e⁻²z, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ये है d-2 का स्क्वायर इंटू 2 को आगे ले लो e⁻²z, और जब भी e⁻²z मल्टीप्लाई होता है तो हम d की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, d की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप लोगों को याद है d की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, किसी के याद है? बोलो, d की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, एनीबडी नोट्स? भूल गए? अरे भूल गए क्या गाइस? किसी को याद है डी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा? यही तो कल हमने पूरा 2 घंटा यही तो पढ़ा था। अगर अपने को यही नहीं आएगा तो फिर कैसे बढ़ेंगे आगे? इसको सॉल्व कैसे किया जाए? डी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, पुट डी इज इक्वल्स टू 2, जो ई का कोएफिशिएंट है ई एक्स का, राइट। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 - 2 का स्क्वायर इंटू e⁻²z, राइट। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 - 2 0 इंटू e⁻²z। सो इसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ केस ऑफ फेल्यूर। तो जब भी फेल्यूर आएगा तो हम यूज़ करेंगे न्यू ऑपरेटर। पढ़ाई इसके लिए ज़रूरी होता है। क्या होता है वो, इंटीग्रेशन 1 डॉट, वहाँ पे x था, यहाँ पे z है तो dz डिवाइडेड बाय d/dz ऑफ कौन, d-2 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 आएगा z डिवाइड बाय d-2 का स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 × d-2 इंटू d/dz ऑफ d, जो कि क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो d/dz नहीं dd आएगा, सॉरी। तो d-2 का स्क्वायर हो जाएगा तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x⁻² - 1, राइट। तो यहाँ पे d-2 इंटू d/dd ऑफ d-2, तो d का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये न्यू ऑपरेटर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज़ 1/2 - 2 स्क्वायर की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, z/2 इंटू d-2 इंटू e⁻²z, राइट। तो 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बचेगा, z/d-2 इंटू e⁻²z, राइट। तो यहाँ पे e⁻²z आया और z मल्टीप्लाइड है, तो d की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइडिया? एनी आइडिया? फिर से 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट d इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि e⁻²z है तो d की जगह 2 डालेंगे। तो देखो क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका, देखो देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू z/d की जगह पे 2 - 2 इंटू e⁻²z, तो z/2 - 2 0 इंटू e⁻²z। तो ये और एक बार क्या आ गया, अगेन इट इज़ अ केस ऑफ फेल्यूर, तो ये फिर से फेल हो गया। तो न्यू ऑपरेटर यूज़ होगा, न्यू ऑपरेटर क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 dz डिवाइड बाय d/dd ऑफ, ये वाला अभी ऊपर वाला तो काम खत्म हुआ, तो ये d-2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 आएगा z डिवाइड बाय d का डेरिवेटिव 1 - 2 का डेरिवेटिव 0, तो 1 - 0 इज़ 1, तो ये सिर्फ z आएगा, z/1 पकड़ो। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, z इंटू z/1 इस पूरे की जगह पे इंटू e⁻²z।
तो z इंटू जेड हो गया जेड स्क्वायर इंटू ई रेस टू 2z, ख़त्म, इसके आगे कुछ नहीं करना है, d पूरा चला गया, राइट। देयरफॉर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। तो y इक्वल्स टू वाई सी क्या निकाला था हम लोगों ने, c1 प्लस सी टू जेड, c1 प्लस सी टू जेड इंटू ई रेस टू 2z प्लस वाई पी क्या आया, जेड स्क्वायर इंटू ई रेस टू 2z, राइट। अभी आपको z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्या होती है log x, राइट। तो c1 प्लस सी टू जेड की जगह पे log x इंटू ई रेस टू 2 log x प्लस log x द होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू 2 log x, राइट। नाउ ये हो जाएगा c1 प्लस सी टू log x इंटू ई रेस टू 2 इधर जाएगा तो log ऑफ x का पावर प्लस log x द होल स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 2 उधर जाएगा तो ई रेस टू log ऑफ x का पावर, ई एंड log कैंसिल, ई एंड log कैंसिल होता है तो x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो आंसर आएगा c1 प्लस सी टू log x, ई log चला गया तो x स्क्वायर प्लस इधर का log x का होल स्क्वायर एज इट इज़ इंटू x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है y का। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें डील करने हैं, गेटिंग यूजिंग z कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना है एंड देन वी गेट द आंसर। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। और हम एक दो क्वेश्चंस और करेंगे तो और आपको और डीपली अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है। तो जिसको कॉम्प्लीमेंट्री समझा, पर्टिकुलर समझा, उसके लिए कॉची ही समझ में आएगा। इसके लिए कंसिस्टेंटली लेक्चर अटेंड करना चाहिए, कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए होमवर्क में जो मिल रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ईजी लगेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके लिए तो डिफ़िकल्ट ही लगेगा फिर। आज हम और एक इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल का, उसमें और मज़ा आएगा। दैट इज़ अगेन इंटीग्रेशन है, इजी है, नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। ये था क्वेश्चन 1। नाउ आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2। लेट मी चेक सस्ता महंगा एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज अवेलेबल और नॉट। एक क्वेश्चन है, अच्छा है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो है, अच्छा मिल गया। We got the question. सच में अच्छा क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चंस हम देखते हैं।